ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਦੱਤ ਗੁਲਾਟੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਸਰੋਜ ਗੁਲਾਟੀ, ਵਿਨੀਤ, ਸੁਨੀਤਾ ਗੁਲਾਟੀ, ਸ਼ੈਲੀ, ਕਮਲ, नीतू, अरुण, लक्ष्य गुलाटी, मोहन, वंदना गुलाटी, अरुण, किरण गुलाटी, प्रिया, विकास, विनोद, वीना गुलाटी, एडवोकेट पुनीत, स्वाति गुलाटी, पुष्प, खुशबू गुलाटी, कनिका, राकेश, अंगी, ज्योति, सुमन, रमेश आहूजा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੀਤਾ ਮੰਦਿਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਦੱਤ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ 1944 ਤੋਂ RSS ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। 1948 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨਾਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 11 ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1956 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਆਪ ਜੀ 1962 ਤੋਂ 1986 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਲੜੇ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚੰਗੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 1962 ਤੋਂ 1978 ਤੱਕ 2 ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਦੱਤ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹੈ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਹਨ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਦੱਤ ਗੁਲਾਟੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ, ਕਵੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਂਸੂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਂਸੂਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਬਹੁ ਰਾਣੀ ਰੱਖਣਾ। ਭਜਨ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬੋਲ ਲਓ। गरुड़ पुराण पढ़ना कोई औखी गल नहीं। पंजवीं का बच्चा भी गुलाटी साहब गरुड़ पुराण पढ़ रहे।
गरुड़ पुराण की अहमियत की कितना बालक आया, कितना दुख सुख, कितना प्राण निकले, किथे गया, इस सारा वेरवा मैं चंद मिनटां दे विच तुहानू दस दिया। गरुड़ पुराण दे विच गुलाटी साहब जी एक शब्द आंदा है कि गर्व दोगे पुराण की शमशान। जेड़ा ये चार चीजां की अहमियत नूं समझ लेगा ना, उनका लोक भी सुधर जाएगा ते परलोक भी सुधर जाएगा। गर्व एक ही मना रखा, एक गरुड़ पुराण के तीसरे अध्याय में लिखे, बालक जिस वक्त श्वास ले रहे हैं ना, परम पिता परमात्मा वाहिगुरु अकाल पुरख अपने इष्ट देवता को याद कर, कहता प्रभु जिन्ना वास्ते चंगे माड़े कर्म को कर्म कीते सी, दुख में कलियां ही पाना सी। देखो जबकि भगवान ने उसको ज्ञान अपान समान भक्ति शक्ति सब कुछ दिता है, प्रभु ने दर्शन भी दिते, फिर भी देखो दुख पाए। कहता प्रभु मैंने काल कोठड़ी दे विचों छुटकारा दिला, एक गल्लां भी भूल गया। परमात्मा ने सुन ली, केवल कहने देखो कि प्रभु धनवान भी सुनते आ जी, मारे भी नहीं सुनते, ये साडी सोच अलग। भगवान कहते साडी अदालत दे विच चाहे तो सबल है, निर्मल है, दुखी है, मूर्ख है, पंडित है, गुरु है, विद्वान है या कि धनवान है, उसे तोड़ के गल होनी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की क्या है, अर्जुन तो कर्म कर, फल देना ना देना मेरी मर्जी है, मेरे को खो के को नहीं जा सकता। ये दसो बालक जिस वक्त जन्म लेंदा है, गुलाटी साहब की बच्चा रोंदा, बच्चे ने बाहर कर दिया, रोंदा क्यों, रोंदा कारण की? अगर ना रोवे असी कहने जी बच्चा बीमार है, ये डॉक्टर भी कहता, साइंस भी कहती है। रोंदा इस वास्ते आ कहता कि हे प्रभु जिस मोह माया दे जंजाल नूं मैं छड्ड के गया सी, मैनू लिया के तुसी फिर फसा दिता। माया मरी ना मन, माया नहीं मरना, बंदे का मन नहीं भरना, तृष्णा बढ़ती। महाराज कहते हैं वो प्रभु दे अगे प्रार्थना कर। नंबर 2, दुखी बंदे को जिस वक्त जाननी है वो की कहता है, कहता है प्रभु जे मेरे दुखों का तू निवारण कर देगा तो मैं तेरे चरणों का सिमरन करा। देखो चीजां 2 है, चिंता सुचिंतन। जबकि गुरबाणी में शब्द लिखा है कि चिंता ताकि की गुरबाणी की काली चिंता है, जेड़ा बनिया है उसने टूटना है, जेड़ा जमिया है उसने मरना है। इत्थे भी गुलाटी साहब गलत कहते, जन्म दे नाल बंदे दी मौत नहीं, मौत दे नाल बंदे दा
जन्म जेड़ा दसिया महाराज ने शुरू की लिखे गुरबाणी में भी शब्द आता है मरण लखावे मंडल में आ पहले बंदिया मरना तो सीख लिया अज मरना सानू भुलिया होया है अपने आप को असीं जींदियां भी समझने हैं साडा जीना भी एक निश्चित फल दसिया गया जिस वक्त ठीक हो जाता है बाद में कहता है रब किथे है भाई रब किथे देखिए पहली गल ये दसो तुसीं मेरे को बुजुर्ग बैठे हो विद्वान हो समझदार बुद्धिजीवी हो रब मंदिर बैठे गुरुद्वारा गिरजाघर मसीतां में बैठे धर्म स्थान ते मन नूं मिलदा सकून शांति मिलती है कि असी गुरु घर दे विच जाके नतमस्तक हो गए परमात्मा का यह बैठा अंदर एकाग्र चित जिस वक्त चौकड़े लगा के अपनी अंतरक आत्मा नो एक हृदय उठा के तू 10वें द्वार ते ले जाना ना तेरे ते प्रभु विच अंतर नहीं है 10वां द्वार केड़ा है मस्तक श्रुति स्मृति लिव लगन तेरी लगन लाके ते रब तेरे को अपनी आप आ महाराज कहते हैं तीसरा शमशान गुलाब साहब जिस डेड बॉडी लैके असी उस शमशान दे विच जाने हैं एक बारी दिल ते हाथ रख के दसो सानू ज्ञान कितना होंदा यही कहने हैं ना कि यार बंदे की जिंदगी की ऐ जिंदगी है छट खड़ी 45 मिनट लगते हैं संस्कार नो असी 5 मिनट सोटी लाने हैं चलो जी संस्कार है हो गया कितनी शोध हो गई इनू ज्ञान भी कहती है गरुड़ पुराण के 16वें अध्याय में एक शब्द आता है अंधे को दिखाओ दर्पण उसे क्या मालूम दिखा रही है या नहीं दिखा रही सोए हुए को जगाओगे वह जाग जाएगा जो अनसोया है उसे जगाने की कोशिश करोगे वह कभी नहीं जागे ज्ञान का मतलब की गुलाब साहब सूरज उदय होता है अंधेरा दूर हो जाता है तुसी जोत जगाइए लाइट दे रही है जोत के थल्ले की है अंधेरा असी स्टेजां ते बैठ के ब्राह्मण गुरु सन्यासी लोकां नूं उपदेश देने हैं कदे अपने उत्ते भी अमल किया है भला बुरे को दिखन जला बुरा न दिखा कोई अपने में से देखे तो भाई हम सा बुरा न कोई मारे कहने तो रब दी पुलिस है जो करेगा सो भरेगा जिस वक्त शमशान दे विचों बाहर आने हैं फिर की कहने हैं वो सारी दुनिया के नाल है जी जो होगा देखा जाए चौथा पुराण गुरबाणी में शब्द लिखा है कि संग सखा सब ताजगियों कौन न निभ्यो साथ कहो नानक इस विपत में टेक एक रघुनाथ जिस वक्त मुसीबत प्रभु अगे रब खुले पहली गल ये दसो आज सारी संगत इतने काम की आई
क्या असी पैसे चढ़ाते, फुल चढ़ाते, रोटी खा ली, हाथ जोड़ दिता, इनू श्रद्धांजलि कहते हैं? श्रद्धांजलि का मतलब है कि श्रद्धा, श्रद्धा दे नाल अगर 2 मिनट भी तुसी उस परमात्मा वाहिगुरु अकाल पुरख का एक सिमरन कर लोगे ना, तुहाडे जीवन का लक्ष्य जिहड़ा प्राप्त हो जाए। बुल्ले शाह ने शब्द भी लिखा है, जेड़ा मिलता नहातियां धोतियां ते मिलता डडुआ मच्छियां, जेड़ा मिलता जंगलों दे विच ते मिलता गौवां बच्छियां, जेड़ा मिलता मड़ी बसानी। बाबा बड़ा सियाना है, तांत्रिक पंडित बड़ा सियाना है। महाराज कहते कर्म, बंदे दे कर्म सियाने होने चाहिए आ ते सारे काम हो जाएंगे। कि कर्म ही हार गए ते फिर कुछ हो नहीं सकता। पर बुल्ले शाह ने शब्द लिख दिता है, महाराज कहते आ रब उसनों मिलदा जिन्हां दियां नीतां सच्ची, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हिरदे सांच है ताके हिरदे आप। जिस बंदे की सोच विचारधारा उच्ची हो गई है, परमात्मा उनके गुण आन के विराजमान हो जाए। आज गुलाटी परिवार के नाम बड़ा प्यार है, सुलझिया परिवार। शहर के राजनीतिक, समाजिक, धार्मिक सारिया संस्थावां दे नाल एक अहमियत बना के अलग ही रखी। कई लोग स्वार्थ पीछे काम करते हैं, कई परमार्थ पीछे करते हैं। गुलाटी परिवार परमार्थ, दानवीर, धर्मवीर, कर्मवीर परिवार। अज परिवार के तिने सपुत्र बैठे आ, श्री मदन लाल जी, श्री दर्शन लाल जी, मदन मोहन जी और विनोद जी। सरोज बंदना बीना बढ़िया लाइक, अंबाला, बटाला और जलंधर के विच जिसने अपनी एक अहमियत बना के रखी है, इस तो वड्डी होर गल की हो सकती। परिवार के दामाद बैठे आ, रमेश आहूजा जी, शकुंतला चावला और सुमन, दोनों बेटियां बैठी। नाम लिख रहा सी, मन दे विच बड़ा एक रोशिया प्रगट होया। क्या पंडित जी साडे दामाद जिहड़े आ जोगिंदर जी, उस संसार को छड़ के चले। एक गल सुनन वाली, जिस तन लागे सोई तन जाने, जाने कौन पीर पराए। आज कहने हैं कि साडे पिता ऋषि जी, वो है भी ऋषि सी, ऋषि मुनिया वर्गा उन्होंने प्रमाण बेटा भी घर जाता सी, अगे भी माता जी ने उठाला किया। जिस इंसान ने सारिया चीजों की एक सोध लै ली होवे, उनका मरण भी सफल हो जाए। 95-96 साल की उम्र के विच संसार को छड्ड के चला जाना, मैं कहना खुशियां की गल है। कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, गल नहीं, कोई बात नहीं। पर जिस वक्त बच्चियां का एक दुख है, इन्हू की कहने हैं, काल तांडव कर चुका, काल तमाशा कर चुका। गुरबानी दे विच एक शब्द आंदा है, काल पाए ब्रह्मा वक्त धरा
ही अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, अरे सकल काल का किया तमाशा। गुरु महाराज की कहते, कभी किसी का तमाशा ना देखो। आज आग तेरे खारे, कल उसके खारे, आज उसके खारे, कल तेरे खारे। काल ने नहीं बख्शना किसी को, अपनी सोच विचारधारा उच्ची कर। बच्चिया फोन आया बोबरानी का, पंडित जी पिताजी चले गए, मैनू एक गल आई दसो, विनोद जी पिताजी गए, दर्शनलाल जी तुसी बड़े समझदार हो, मदन मोहन जी मेरी उम्र ज्यादा सियाने हो, पिताजी गए, पिताजी दिखा लो सुते थे। बोलने वाली केड़ी चीज है जेड़ी के उन्होंने दे अंदरों बाहर चली गई। गुरबाणी दे विच एक शब्द आता है, इक्का माई जुगत विहाई तीन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लावे दीवार। गुलाब साहब जो शब्द पढ़ने हैं ना, उस शब्द की व्याख्या भी करनी चाहिए। व्याख्या की होती है, महाराज कहते हैं इक्का माई अलौकिक शक्ति। इस सारा संसार जो है उस शक्ति के द्वारा खड़ा है। शक्ति को कुछ अंश शक्ति ने मिलके बालक जन्म ले। एक गल कवि ने कही है, संतान ना होवे एक दुख, भूखे मर जावे बंदा दुख भुल जाता है। भारी जवानी ये तो तुसी पहले देख लिया कि महाराज ने पहला माड़ा कर दिया। काल को जिस सके, काल की अहमियत की है। गरुड़ पुराण के 16वें अध्याय में एक शब्द लिखा है, काल पृथ्वी को फूंक सकता है, सुमेरु पर्वत को पिघाड़ सकता है, अरे समुंदर को सुखा सकता है, तो इंसान का कहना है क्या? इंसान का इको कहना मैं। गीता में संस्कृत का शब्द आता है मम एवं अमम, मैं बनाया, मैं गवाया, मैं सवारिया, मैं बिगाड़िया, मैं ना होता दुनिया में तो काम भी नहीं होना। मदन मोहन जी दसो काम भी कर लोगे। सातयुग चला गया, काम रोक गया है। त्रेता द्वापर चला गया, काम रोक गया। काल युग नहीं, काल युग है। जो जो विषे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। महाराज ने जो तू बीतिया कटना तेनू ओही पैना। साडे बुजुर्ग चले गए, कम हो गए, या असली चले जावांगे कम हो गए। काम बाद चढ़ के होंगे, पर जेड़ा दुनिया तो चला गया वो मुड़ के कभी वापस आएगा। कानून को जिस सके तुसी इत्थों दा आया अलबत्त 3 ग्राम कोरोना आया और वर्ल्ड है। पंचांग पिछले साल लिखा सी 17 विश्व मृत्यु है, 8 विश्व जन्म। मैं सोचा सी युद्ध लगे, पर यह नहीं पता कि परमात्मा ने केड़े पासों लिया के हानि का कारण है प्रगट कर दिया। पिताजी के अंदरों अलौकिक शक्ति ने अंश महाशक्ति दे चले। देखो मैं ऋषि क्या नाम पे ऋषि एक ज्ञान कितना से बच्चे दस रहे हैं कि पिताजी ने क्या कि पूरे 12 बजे चले जाएंगे, सो कितनी और 12 बजे ही कुरान। एक तो तुसी अंदाजा लाओ दर्शन की मौत कितनी दूर है।
मैंने तो प्रसंग याद आ गया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपनी लोथ बैठे हैं, मरदाने कहने मौत कितनी दूर है, कहते उठ के बाहर जाऊंगी मर जाऊंगी। बाले को पूछिया, बाला कहना तुम्हें मर जाऊंगा। बस एक गुरु महाराज के को रह के रत्ती हर भी साढ़े को ज्ञान नहीं ले सकते। क्या है कि गुरु गुरु कहने के नाल असी गुरु हो गए ते तुसी शिष्य हो गए। पहली गल तो गुरु शब्द ही नहीं कोई, तुसी कोई कुरान पढ़ के देख लो, शब्द है बोल। गु मैंने अंधेरा अरे गु मैंने प्रकाश। जेड़ा अंधकार दे विचों कढ के सानू दर्श मार्ग दिखा दवे ना, असी उन्हें गुरु महाराज का दर्जा प्रदान करना। मर्दाना बड़ा समझदार था। मर्दाना कहते गुरु महाराज जी एक गल दसो, सूरज जगे दीपक की वैल्यू की, पिता के अगे पुत्र का प्रमाण की। आज सारी दुनिया राम 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 कर दी है, पर राजा दशरथ को किसी ने आज तक याद किया? विनोद जी 4 पैसे कमा ले, जो तो अकेला क्या? बिल्कुल गलत। रामायण के शब्द लिखे, रामे रामे हर कोई कहे, दशरथ कहे ना को, एक बार दशरथ कहे, सहस्त्र यज्ञ पुण्य हो। मारे की कहते कहते करोड़ा वाली राम का नाम ले लो, एक बार पिता को याद कर लो कि ओना पुण्य प्राप्त हो जाए। आज तीनों भाई बैठे हैं, दर्शन जी, मदन जी, विनोद जी, क्या एक ऋषि बन जाए, तरक्की कर जाए, बेटा अगे लग जाए, लेकिन पिता का स्थान कोई अज तक ना ले सके ते ना कोई ले सके। ओ बंदिया गुमान ना करी, तेरी 4 दिन दी है जिंदगानी, कि बंदिया गुमान ना करी, पैना मुल नहीं मिट्टी दा दवानी। राकेश जी इस मिट्टी का तो मुल नहीं पैना, मुल कितना पैना जेड़ा तू अच्छा कर्म किया। छल ईर्षा कपट द्वेष जे तेरे अंदर है ना, एक गल होर के अपने मुंहों बंदा जिन्ना मर्जी अच्छा कि मैं चंगा, मारे कहते जिन्हों समाज अच्छा कवे ना वो अच्छा बनता है, गुणगान यश गावे वो अच्छा है, अपने मुख ने तो तारीफ करे वो बंदा अच्छा करे। थोड़े दिना दिए थे रोते हैं बहार दी, के पत चारे आउंदी है सफेदियां खिलार दी। थोड़े दिना दिए थे रोते हैं बहार दी, के पत चारे आउंदी है सफेदियां खिलार दी, के सदा रहनी नहीं तेरे ते जवानी। जवानी
सदा नहीं रहता, सदा नहीं इको जिके, सदा ना बाकी बुलबुल बोले, सदा ना मौज बहारा। गुरु महाराज ने की किया है, सदा इको जिके दिन ही रहते। अज तू अहंकार मैंने डुबिया, कल नूं पता नहीं तेरा हशर की होना। गुरु महाराज ने शब्द की व्याख्या की है, हड्डियां दी मुख तेरी देही दा समान में, खैर तेरी गाली उत्ते तेनो अभिमान में। बालक जन्म लेता कितना इन्ना, जिस वक्त संसार को छड़ के जाता है फिर किन्ना, फिर भी किन्ना। महाराज ने क्या की, मैंने गल याद आ गई, स्वर्गा निवासा स्वामी संत ईश्वरदास जी महाराज, उन्होंने गुरु की नाल ही मैं 40-45 साल पहला सत्संग करना, बड़ा मेरा प्यार पालक आना जाना। उन्होंने को जाके बहना एक शब्द बोलते होते थे, जिस्म इंसान का क्या है जिस पे है शैतान जहां, एक माटी की इमारत एक माटी का मकान, आरे खून इसमें गारा है, आरे पीट इसमें हड्डियां, चंद श्वासों पे खड़ा है ये ख्याली आसमां। जिस तरह के पंडित ने दसिया, आज गुलाटी परिवार के विचों ऋषि गुलाटी जी ने पंडित ने विराग में सारे भजन राही और सत्संग राही इस ज्ञान सभा के मौत के बारे, जन्म के बारे दसिया। गुलाटी परिवार सारे को पता है, एक संस्कारी परिवार है, जिहड़ा कि सब पिता जी देना है। बाप जिस तरह बच्चे को मोड़े, उस तरीका बच्चे जिहड़े है कि घर के संस्कार अच्छे होण ते घर बच्चे भी संस्कारी बनते। साढ़े विनोद जी है, बाकी दोनों भरा पहला बटाले दे विच उत्थे अपनी कशबू उन्होंने जी, हम फिर जलंधर दे विच जिथे जिथे बैठे इस परिवार की कशबू है। बाणी में लिखा है कि मरण लिखा है कुंडल में, जिसने इंसान गर्भ के विच आउंदा विधाता उस वेले उनके श्वास जिहड़े है लिख के भेजती है। एक श्वास भी अगे पिछे नहीं होंदा। अज असीं सिर्फ कहते ने भी संस्कार हो गया, उस तो बाद विनोद जी हरद्वार गए क्रियाक्रम कराता, इन्हें इकट्ठ करने की क्यों लोड़ होंगी। इस करके कुछ सत्संग राही कुछ बाणी जिस तरह लिखा कि बिरथा कवि ने जानसी जन की अरदास, अज असीं अरदास करने इकट्ठे हुए हैं। हे परम पिता परमात्मा, साढ़े इन्होंने बजुर्गों के कोलों, वैसे मैं तो नहीं समझूंगा कि इन्होंने कोई ऐसी गलती की हो वैष्णो रहे, मगर फिर भी अगर जाने अनजाने के विच अगर कोई गलती हो गई होवे परिवार के पालन लिए भी, तो हे मेरे परम पिता परमात्मा उन्हें माफ करी, तो जन्म मरण के मुख चो खत्म करके अपने चरणों के विच निवास दें। मैं देख रहा मनोजर कालिया जी चले गए, साढ़े बराज ठाकर जी बैठे, बहुत ही नेक काउंसलर, कोई जावे काम आते। मैं उन्होंने बेनती कराँगा बराज ठाकर जी को कि परिवार वालों बब्बी चड्डा जी भी है और बटाले तो ऋषि जी के साथी
मास्टर कुलदीप जी, शर्मा जी, शिव जी, कौंसल गुरवंत सिंह जी बटाले तो आए हैं। उन्होंने भी इतने आने का बहुत बहुत धन्यवाद है परिवार वालों। और शोक प्रस्ताव विजयनगर वेलफेयर सोसाइटी तो जबकि प्रेजिडेंट डी डी महाजन साहब, जेपी सोंधी जी, विजय वासन जी वो भी आए हैं। उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान तो स्वामी सज्जनानंद जी वो भी आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। अज असी रिशीदत्त गुलाटी जी की अंतिम शोक सभा में हाजिर होए हैं। गुलाटी परिवार बहुत ही नेक और समाज के विचरण वाला परिवार है और इन्हां दी जिहड़ी वर्किंग है मैं बड़ी लागियों देखी है। इन्हां दी सोच पॉजिटिव है, काम करने का जज्बा है, सेवा का जज्बा इन्हां दे विच है। और इन्हां दे पिता जी कृष्ण सॉरी रिशीदत्त गुलाटी जी को मिलने का मौका बहुत बार मिला। वो भी बड़े एक्टिव थी और बड़ा समाजिक रूप से भी बड़ा अपना रोल अदा करते थे और जो कोई गल होनी तो उन्होंने चंगी तरह गाइड भी करना। उन्होंने एक लंबा जीवन व्यतीत किया और लंबे जीवन की जो गल कर लीए तो लंबा जीवन होने के दो कारण तो जरूर है। एक बंदे का पॉजिटिव होना, नेक होना, ते दूसरा परिवार का वधिया होना। क्योंकि जो परिवार वधिया है तो बुजुर्गों की उम्र लंबी होती है तो बहुत बड़ा कारण लंबी उम्र का है। चाहे छोटी उम्र च जे मौत होती है तो बहुत कारण हो सकते हैं और लंबी उम्र होने के एक बहुत बड़े कारण है कि जो जीव है वो पॉजिटिव है, वो चंगा काम करने वाला है, चढ़ती कला के रहने वाला है। तो उन्होंने जोड़े परिवार है, बच्चे हैं, उन्होंने जोड़े बच्चे हैं वो बच्चे उन्होंने सेवा करने वाले हैं। अज विनोद गुलाटी जी तो उन्होंने ब्रदर उन्होंने बहुत बड़ा घाटा पाया। गुलाटी साहब विनोद जी इन्हों का साड़ा कारपेट के नाल संबंध है। उत्थे एक ट्रैक्टर का काम करते हैं। इन्हों का बहुत वधिया रुतबा है, बहुत वधिया काम करते हैं। ये परिवार जोड़ा है इसको बहुत बड़ा घाटा पाया है। उन्होंने दिते हुए संस्कार के नाल ये अज उन्होंने खुशबू जी समाज में छुड़ा रहा और ये खुशबू जी है समाज वास्ते बहुत ही उसकी लोड़ है। क्योंकि बजुर्गों का जो आशीर्वाद है वो परिवार के उत्ते हमेशा बढ़िया रहता। चाहे वो शारीरिक रूप से भी साढ़े हो या ना हो, उन्होंने आत्मा का भी अपने परिवार के उत्ते उन्होंने जोड़ा छाया बनया रहता है। मैं साढ़े विचार केडी भंडारी जी भी आए हैं और मैं उन्होंने भी धन्यवाद करता। इन्होंने शब्दों नाल मैं फिर पिछली ही रूह की मंगल कामना करता। धन्यवाद।